Next is each of our students pay their tuition fee at the beginning of the month. Now we have discussed this so many times. The adjective each, right? The adjective each, it signifies singularity, right? So the verb must also take the singular case, right? So our students pay his, right? Each of our students pays his. So that's there in option C. Okay, each of our students pays his tuition fee at the beginning of the month. I give you two examples also. Each of the boys has brought his cricket bat. Each of the boys has. ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंगुलर यूज कर रहे हैं. ईच ऑफ द लेसन्स इज. सो बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है. ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स pays his tuition fee at the beginning of the month. Each of the boys has brought his cricket bat. Each of the lessons is quite easy. Okay. Now friends, one or two important points also I would like to discuss over here. See, each of us, अगर हम बात करें तो each of us or maybe you or maybe them, right? So each of us, you, them is singular. Okay, then sentence जैसे मैंने आपको बताया, each of us has a maybe box, right? या each of us has a map, has a book, कुछ भी, right? So each of us has, each of us has, right? लेकिन जब हमारे पास हो we, you, they, or maybe I can say them, not them, we, you, they, right? Them we have already used. So we, you, they, these are actually plural, right? So I just write down a sentence. In that case, we each have a box, right? They each have a box. You each have a box. Okay. So each of us, you, them रहेगा तो वो singular रहेगा, लेकिन we, you, they के साथ आएगा तो वो plural. Each of us has a box, but we each have a box, right? Each of us has a box, but we each have a box. ठीक है, तो ये ध्यान रखिए. Okay, I told him clearly he had not ought to do that to me. See the word ought, that's a modal auxiliary, right? And it is always followed by an infinitive, like to talk, to write, to go, something like that, right? So यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर ought जो है वो एक infinitive से follow हो रहा है, right? उसके बाद एक infinitive है, that is to have. Okay, so this should be the correct option because यहाँ पर दोनों जगह नहीं है, right? और उसके बाद में the negation must be placed directly after ought, right? जो भी negation है, मतलब कि उसको नहीं लिखना चाहिए था, तो वो जो negation है वो directly ought के बाद में होना चाहिए. So ought not to have done, right? उसने जो भी कहा है, या I told him that he had not to do that to me, उसको मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था, right? So that is the correct option. दो examples और लेते. Okay, he ought not to write so badly. Okay, उसको इतना बुरा नहीं लिखना चाहिए, right? So ought, उसके बाद में यहाँ पर infinitive. सुनीता ought to understand, infinitive. Okay, सुनीता ought to understand Anil's problem. सुनीता को अनिल का प्रॉब्लम समझना चाहिए. Okay. Okay, the fast train come to a halt to before crossing the bridge. Okay, come to a halt का मतलब होता है धीरे धीरे करके रुक जाना. यहाँ पर दो चीज है. द फास्ट ट्रेन कम नहीं होगा, केम,
ठीक है, पहली चीज तो वैसे तीनों ऑप्शंस में भी आप देखें तो केम तो है ही, एंड देन केम टू अ हॉल्ट। सो एक ही ऑप्शन है केम टू अ हॉल्ट बिफोर क्रॉसिंग द ब्रिज। सो वैसे ये करेक्ट है, लेकिन एक दो चीजें आपको ध्यान से समझनी है। जो फ्रेजल वर्ब है टू कम टू, इसका मतलब होता है टू रीच, राइट। और जो वर्ब फ्रेज है टू कम टू अ हॉल्ट, इसका मतलब होता है टू स्टॉप या फिर टू रीच अ स्टॉपिंग प्लेस। ओके, सो टेंस जो मैंने आपको पहले बताया वो सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। सो केम टू अ हॉल्ट बिफोर क्रॉसिंग द ब्रिज। ब्रिज को क्रॉस करने से पहले वो ट्रेन जो है वो धीरे धीरे करके रुक गई। ठीक है, दो सेंटेंस लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ भी है, द कार केम टू अ हॉल्ट एंड देन स्टार्टेड टू रोल फॉरवर्ड। जैसे यहाँ पर आर कार केम टू अ सडन हॉल्ट एज वी हैड रन आउट ऑफ पेट्रोल। क्योंकि हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए गाड़ी अचानक से रुक गई। ठीक है, द बार्किंग डॉग केम टू अ हॉल्ट व्हेन इट सॉ इट्स मास्टर, राइट। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। आई टुक द साइकिल विच ही बॉट यस्टरडे। ओके, मैंने वो साइकिल ली जो वो कल लाया था, राइट। अब यहाँ पर बहुत बारी ये इस तरह का जो पैटर्न हम कर चुके हैं, दो इवेंट है, दोनों पास्ट टेंस में है, तो जो पास्ट के भी पास्ट में है या प्री पास्ट में है उसको पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, राइट। तो मतलब मैंने वो साइकिल ली जो वो पिछले दिन लाया था, राइट। मतलब जो साइकिल लाने वाला इवेंट है वो पहले है और साइकिल ले जाने वाला इवेंट है वो बाद में। तो जो पहले वाला इवेंट है वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, राइट। सो विच ही हैड बॉट यस्टरडे, आई टुक द साइकिल विच ही हैड बॉट यस्टरडे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो सिंपल पास्ट और ये वाला जो पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल्स लेते हैं। प्रिसाइसली ये जो वर्ड है yesterday, that tells us that the action of buying the cycle was finished before the action of taking the cycle। ठीक है, जो साइकिल ले जाने का काम है वो बाद में हो रहा है, खरीदने का काम जो है वो पहले हो रहा है। इसलिए ये जो पार्ट है वो पास्ट सिंपल पास्ट में और ये जो पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में। Examples, mother had cooked a delicious meal before the guest arrived। अब आप देखिए, मम्मी ने खाना पहले बना लिया था, गेस्ट बाद में आए, तो जो पहले वाला इवेंट है वो पास्ट परफेक्ट में, राइट, और ये सिंपल पास्ट में। इसी तरह से दो आई हैड स्पोकन टू हिम यस्टरडे ही आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन टुडे, राइट। जो पहले वाला यस्टरडे वाला जो है, पहले वाला जो इवेंट है वो पास्ट परफेक्ट और उसके बाद वाला जो है वो सिंपल पास्ट। ठीक है, तो जब भी दो इवेंट हो पास्ट में, तो जो पास्ट के भी पास्ट में हो या जो पहले हो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा और जो बाद में होगा वो सिंपल पास्ट में। ठीक है, ओके। द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू ऑर्डर इज ग्रेटर देन द इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिशियन। सी, there is a comparison being done in this given sentence. The importance of the role of industrialist is being compared to the role of politician and the economist, right? So the defining word, I can say that is most necessary. Now without this, that is the word that, the comparison becomes meaningless. What happens? The role gets compared to the economist, right, and the politician, or I can say a person, right. So that is like we can say quite ridiculous. उसके सिवाय भी जो इकोनॉमिस्ट है और द पॉलिटिशियंस है, दैट ऑफ द इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिशियन। ओके, ठीक है, वापस हम बात करते हैं। बहुत बड़ी एग्जांपल्स हम इस तरह के डिस्कस कर चुके हैं। आप एडजेक्टिव्स का सेशन आप अटेंड करेंगे तो भी आपको ये समझ आएगा। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन सेम लाइन में होना चाहिए। अभी यहाँ पर आप देखिए, द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट, राइट। रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑर्डर इज ग्रेटर देन
ग्रेटर देन द इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिशियन। अभी जो रोल है हमें कंपेयर करना है, और रोल किससे कंपेयर हो रहा है? इकोनॉमिस्ट से और पॉलिटिशियन से। ठीक है, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन ये सब क्या है? पर्सन्स है। जबकि हमको कंपेयर किसका करना है? रोल का, मतलब कि रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट। ठीक है, रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो जब भी हमें कंपैरिजन सेम लाइन में करना है तो देन के बाद में हम दैट ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, बहुत बारी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, जैसे द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दिल्ली। अब यहां पर क्या हो रहा है? द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई किससे कंपेयर हो रही है? दिल्ली से। जबकि हमें कंपैरिजन क्या करना है? स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई का कंपैरिजन करना है स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली से। तो उसकी वजह से हमें द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दिल्ली की जगह वाइडर देन दैट ऑफ दिल्ली। तब जाकर के ये दैट ऑफ अगर हम लगाएंगे तो ही जाकर के स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई जो है वो स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली से कंपेयर होगी, नहीं तो स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई दिल्ली से कंपेयर हो रही, जिसका जो मीनिंगलेस कंपैरिजन है। ठीक है, सो द सेम चीज यहां पर भी है। जो रोल है इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसको हमें इकोनॉमिस्ट के रोल से कंपेयर करना है, इकोनॉमिस्ट से नहीं। रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट, रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमिस्ट के साथ में कंपेयर नहीं होगा। सो हमें यहाँ पे देन के बाद दैट ऑफ लगाना है। सो देन दैट ऑफ द इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिशियन। सो दैट ऑफ द इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिशियन। ओके ओके, यहाँ प्लूरल की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए इकोनॉमिस्ट या पॉलिटिशियंस यूज करने की जरूरत नहीं है। दैट ऑफ द इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिशियन। सो आई होप यू आर क्लियर। एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। The cake Sunita baked is tastier than that which Anita baked. Okay, मतलब जो सुनीता ने केक बनाया था वो अनीता से टेस्टी था, मतलब अनीता के बनाए हुए केक से टेस्टी था। अगर आपने यहाँ पर दैट नहीं लगाया, समझिए, तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो रहा है? जो केक सुनीता ने बनाया वो अनीता से टेस्टी था। तो केक और अनीता के बीच में कंपेयर नहीं करना कौन टेस्टी है, हमें सुनीता के केक और अनीता के केक के बीच में कंपैरिजन करना है, राइट? सो दैट, उसकी वजह से यहाँ पे दैट लगाया। सुनील्स वॉइस इज वर्स देन दैट ऑफ हिज ब्रदर। अब जो सुनील की आवाज है वो उसके भाई से खराब है, ऐसा नहीं, भाई की आवाज से खराब है, राइट? सो सुनील की वॉइस का कंपैरिजन उसके भाई की वॉइस के साथ में कंपैरिजन होना चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे दैट ऑफ। ठीक है, तो ये दैट ऑफ का यूज आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। काफी सारे क्वेश्चंस बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं जहां पर ये वाली एरर जो होती है वो होती है। ठीक है, क्योंकि एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज से होता है, जो आप कह सकते हो मीनिंगलेस कंपैरिजन्स वाले काफी क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको ये लगाना होता है। सो ये एरर वाले क्वेश्चंस आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जो कंपैरिजन है वो सेम लाइन पर होना चाहिए। यहाँ जो चीज कंपेयर हो रही है वहां पर भी वही चीज कंपेयर होनी चाहिए, राइट? सीता इज स्मार्टर देन गीता, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सीताज बैग इज बिगर देन गीता, तो वो गलत होगा। यहाँ पे सीताज बैग इज बिगर देन गीता, तो वो गलत है। हम यहाँ पे सीता की जो बैग की बात करें वो गीता से बड़ा है, ऐसा नहीं कहना है। सीता का जो बैग है वो गीता के बैग से बड़ा है, राइट? सो सीताज बैग इज बिगर देन दैट ऑफ गीता। समझ रहे आप मेरी बात? तो दैट ऑफ की जो इंपॉर्टेंस है, आई होप अभी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, okay, the poor villagers have waited in the bitter cold for more than 4 hours now. okay, यहाँ पे जो वर्ड नाउ है इससे ऐसा लग रहा है कि जो विलेजर्स है वो अभी भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो इंतजार है वो खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है अगर नाव हटा देते हैं तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इंतजार हो गया है, उनको 4 घंटा इंतजार हो गया, उन्होंने कर लिया है। लेकिन ये नाव आने की वजह से क्या लग रहा है कि अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं, राइट? तो कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी कंटिन्यू है, और कब तक कंटिन्यू रहेगा मालूम नहीं है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। हमें ये नहीं पता कि ये जो 4 घंटे हैं अब इंतजार खत्म हो गया है कि और 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा, आधा घंटा, कितना, राइट? सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो हैव बीन वेटिंग, विलेजर्स है इसलिए हैज नहीं आएगा, हैड भी नहीं,
नाउ होने की वजह से प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं. सो द पुअर विलेजर्स हैव बीन वेटिंग इन द बीटर कोल्ड फॉर मोर देन 4 hours नाउ. दो एग्जाम्पल्स लेते हैं. We have been trying to meet the director for a week, right? We are still trying. इसका मतलब अभी भी हमारी डायरेक्टर के साथ में मुलाकात हुई नहीं है, right? The baby has been crying since morning and it is still crying. अभी भी उसका रोना जो है वो बंद नहीं हुआ है. ओके तो कोई भी एक्शन पहले से शुरू हुआ हो, अभी भी चल रहा हो और कब तक चलेगा पता नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट. Okay, they succeeded without hardly making any effort. Okay, अब see hardly और without दोनों सेम ही. hardly मतलब नहीं के बराबर ही होता है. hardly मतलब उसने बिल्कुल एफर्ट पुट ही नहीं किया, और विदाउट का भी ये वही मतलब निकल रहा है, राइट? तो उससे कोई सेंस नहीं कि आप विदाउट भी यूज करें और हार्डली भी यूज करें. ओके, तो दे सक्सीडेड विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट. ओके, तो एक ही सेंटेंस ऐसा है जहां पर हम विदाउट और हार्डली नहीं है कॉम्बिनेशन, ये गलत है. विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट, दे सक्सीडेड विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट. दो एग्जाम्पल्स लेते हैं. He went out in the cold without any cover. Without any, right? तो विदाउट के साथ में एनी. द मैन केप्ट ऑन बीटिंग द डॉग विदाउट फीलिंग एनी रिमोर्स. ओके, सो रिमोर्स का मतलब उसको कोई भी गिल्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं थी, वो बिना मतलब उसको मार रहा था, राइट? सो द मैन केप्ट ऑन बीटिंग द डॉग विदाउट एनी. So without any. Okay, she passed the exam without making any effort, right? They succeeded without making any effort. Okay, he was urgently in need to get his eye operation. See the verb phrase to be in need. To be in need, it is always followed by the preposition of. Okay, so he was urgently in need of an eye operation. He was urgently in need of an eye operation. Okay, examples लेते हैं. Sunil has been working for months now. He is in desperate need of a break. सुनील महीनों से काम कर रहा है और अब उसको बहुत ज्यादा जरूरत है एक ब्रेक की. My head is aching and I am really in need of a hot cup of coffee. Need of. ठीक है? So he was urgently in need of an eye operation. I hope you are getting it. Okay, by definition, make a map is to select certain features as relevant and ignore others. Okay, by definition, make a map is to select certain features as relevant and ignore others. Okay, make a map का मतलब यहाँ पर है, definition ऐसे हो रही है कि जो certain features है, जो relevant features है, उनको select कर लेना और जो दूसरों को ignore कर देना, right? यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, अगर हम ऑप्शन वाइज जाएं, सो बाय डेफिनेशन इन मेकिंग अ मैप, द डेफिनेशन इज बाय डेफिनेशन मेक अ मैप. इन मेकिंग अ मैप द डेफिनेशन इज इट्स मीनिंगलेस. मैप मेकिंग इज डिफाइंड एज, अभी अगर हमने मैप मेकिंग रखें तो ये जो कोटेशन है इसके अंदर जो वहां पर भी जिरंडी फॉर्म यूज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. हमें खाली इतना ही पार्ट चेंज करना, तो ये भी गलत हो गया. ऑप्शन ए देखते हैं. बाय डेफिनेशन मेक अ मैप इज, सो टू मेक अ मैप बाय डेफिनेशन इज
to make a map by definition is to select certain features as relevant and ignore others. Okay, so that's better. To make a map by definition is to select certain features as relevant and ignore others. So this is correct. दो एग्जाम्पल्स और लेते हैं बिल्कुल सेम ही लाइन पर. To reach a place by following direction is to follow each and every instruction given on the GPS system. Okay, to reach a place by following direction is to follow each and every instruction given on the GPS system. To learn a thing by rote is to learn it by heart without understanding it. ठीक है, सो आप रिलेट कर सकते हैं. सो दैट्स प्रिटी सिंपल. और आप नोट डाउन कर लीजिए इसको. ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस, राइट. टू रीच अ प्लेस बाय फॉलोइंग डायरेक्शंस इज टू फॉलो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द जीपीएस सिस्टम. To learn a thing by rote is to learn it by heart without understanding it. Okay. We demonstrated to them how we were prepared the artistic patterns. See, we were prepared नहीं होगा. We were prepared मतलब तो हम खुद ही प्रिपेयर हुए थे. सो लेकिन वी प्रिपेयर द आर्टिस्टिक पैटर्न्स, हमने आर्टिस्टिक पैटर्न्स बनाए थे, राइट. अभी यहाँ पर दो इवेंट है, हमने डेमोन्स्ट्रेट किया और हमने आर्टिस्टिक पैटर्न बनाए, राइट. तो पहले हमने आर्टिस्टिक पैटर्न बनाए, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट किया. तो दो इवेंट पास्ट में है, उसमें से आर्टिस्टिक पैटर्न बनाने वाला पहले है और डेमोन्स्ट्रेट करने वाला बाद में है. तो ये जो पार्ट है जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में आएगा. बहुत क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं. सो वी डेमोन्स्ट्रेटेड to them how we had prepared the artistic patterns. How we had prepared the artistic pattern. Okay, दो examples लेते हैं. The train had already left the station when Mr. Shah reached it. स्टेशन, मिस्टर शाह स्टेशन पहुंचे उसके पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी. अनिल हैड जस्ट फिनिश्ड हिज होमवर्क व्हेन द गेस्ट अराइव्ड. मेहमान बाद में आए, अनिल का होमवर्क पहले हो गया था. सो ये पास्ट परफेक्ट में, ये सिंपल पास्ट में. ये पास्ट परफेक्ट, ये सिंपल पास्ट. ठीक है, सिंपल. Asking me why was I absent, I was punished by the headmaster. ओके, ये जो सेंटेंस है पूरा रिपोर्टेड स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है. आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का अगर सेशन अटेंड किया है तो आपको क्लियर होगा कि जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में होता है उसको, उसका जो पैटर्न होता है वो सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद में जो दूसरे सारे वर्ड्स है वो आने चाहिए, राइट. सो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद में आना चाहिए. तो यहाँ पे आस्किंग में वाई आई वॉज एब्सेंट. ठीक है, जब ये डायरेक्ट स्पीच में रहा होगा तो वाई आर यू एब्सेंट या वाई वर यू एब्सेंट ऐसा रहा होगा. या जब प्रिंसिपल ने या हेडमास्टर ने इसको पूछा होगा तो ऐसा होगा, वाई वर यू एब्सेंट और वाई आर, मतलब वाई वर यू एब्सेंट, राइट. सो जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है. वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आती है. ओके, सो आस्किंग मी वाई आई वॉज एब्सेंट, asking me why I was absent, ये तो गलत हो गया. why I was absent, was I punished की जरूरत नहीं है. why I was absent, the headmaster punished me. This is the correct one. Okay, examples लेते हैं. Asking me when I would finish my work, my mother left me. Okay, when I would finish my work, my mother left me. When would I नहीं आएगा, when I would. Asking me if I wanted to go out, she closed the door. Okay, so that's pretty simple. दोनों sentences आप एक बार अच्छे से read कर लीजिए और अगर आपका कोई भी concept clear नहीं है तो एक बार direct indirect speech का session दोबारा attend कर लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो order है वो ये जो rules है वो हम कैसे follow करते हैं, right?